Welcome students, welcome to the Ranmo Public School and the Achiever Guide Amit Sir YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट सेकेंड क्लास 9th साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है, चैप्टर 8 मोशन और वी कैन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस चैप्टर we need to learn the basic terminology of motion and some numericals. So the detailed topic analysis is given there. The main topics are, first one is the motion, that means what is motion, what is the condition of rest, what is the position of rest, and then second one is the basic terms related to motion which are very necessary. This is distance, displacement, speed, velocity, acceleration, uniform and non-uniform motion. Then after the third topic is graphical representation of motion, distance, displacement, time. We will learn about the motion using graph. So there are different types of graphs like speed, distance or displacement time graph, velocity or speed time graph, then acceleration time graph. And these graphs will be analyzed in the for uniform and non-uniform motion. And next one is the most important topic is the evolution of equations of motion using graphical method. So there are three equations of motion given by the Newton sir. These are V equals to U plus AT. So and second one is S equals to UT plus half of AT square, and third one is V square equals to 2U square plus 2AS. So later we will learn what is U, V, A and S. All these terms we will learn. Next and the last topic is the numerical section, or we can say numerical problems related to the motion, related to the basic terms, related to the graphical representation. Okay, so in this chapter part first I have already released. So in that part first I have discussed about what is motion and about the basic terminology of distance and displacement, how we can say what is distance and what is displacement, which quantity is scalar quantity, which quantity is vector quantity. I have already learnt you. So in this chapter we will start from distance, displacement, that means the basic terms we will try to learn and understand what are the basic terms, these are which are necessary for the motion. Okay, so now we will start about the basic terms. If you want to know what is motion and how we describe the motion, please refer to the part first of this channel, class 9, and you can also find these videos in the playlist of my YouTube channel. Okay, so let us start the distance, displacement, that means the basic terms. So students, so the first basic term is the distance, that is the most basic term which is used to describe the motion of an object. So देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि देखिए जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ लेंथ कवर करेगा। मान लीजिए आप देवत नगर में थे या आप अपनी सिटी में थे और आप मूव करके कहीं दूसरी सिटी में चले गए, मान लीजिए आप पटना चले गए, ठीक है। तो जब आप दूसरी सिटी, मान लीजिए आप यू वर इन सिटी ए एंड देन आफ्टर मूवमेंट और आफ्टर सम टाइम you were in city B. That means during the some time period you have moved from a position to a different position. That means you have moved from A to B. So in this time duration or in this movement you have covered some length. Yes, definitely. आपने कुछ लेंथ कवर करी है A से B के बीच में. So this length is the distance. What? This length is the distance. As in a general mathematical form, we can say that the position difference between A and B is the distance between the A and B. A और B की position जो difference है, clear? So ये हो जाएगा आपका distance. तो जब भी मैंने आपको बताया था कि distance और displacement में previous वीडियो में बात कितनी सी होती है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो है डायरेक्शन का। कि अगर आप डिस्टेंस बताओगे तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन, कि जितना आपका मूवमेंट हुआ है उस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड टोटल लेंथ इज द डिस्टेंस दैट यू कवर्ड।
सो टोटल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा जो आपने मूवमेंट के दौरान, मोशन के दौरान कवर किया है, वो हो जाएगा आपका लेंथ। बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट में एक थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट की हम इसके बाद बात करेंगे, मैं अलग अलग इसको बाइफरकेट करके समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बेसिक टर्म आपको समझ में आ गया, सो यस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड, एवरीथिंग यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ, सो द डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ covered during motion in a certain time period। मतलब एक निश्चित टाइम पे, मतलब आपको कुछ तो टाइम लगेगा, वो टाइम फिक्स्ड होगा, है ना। एक निश्चित टाइम में जो आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में या वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपने जो मूव किया है, उस दौरान जो लेंथ कवर करी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर। तो देखिए ऐसे अब हमने ए से बी तक कंसीडर कर लिया। अगर हम बात करें कि आप देवेंद्र नगर में हो, यू आर इन देवेंद्र नगर, दैट मींस यू आर इन पोजीशन डी, उसके बाद आप मूव करते हो पोजीशन पी में पहुंचते हो, लेट दैट इज पन्ना, दैट सिटी इज पन्ना, सो द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे भाई आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यस डेफिनेटली यू कैन इजीली से सर 25 किलोमीटर। फिर इसके बाद पन्ना से एक इंसान अमानगंज चला जाता है 40 किलोमीटर, अमानगंज से गुनौर आता है 20 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो देखिए ऑब्जेक्ट चला कहां से है, आपने मोशन स्टार्ट कहां से करी है, पॉइंट डी से, और खत्म कहां पे करी है, पॉइंट जी में। क्लियर। मतलब आप देवेंद्र नगर से चले थे, घूम घाम के गुनौर पहुंच गए, तब आपसे कोई कहे कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो भाई देखिए देवेंद्र नगर से गुनौर पहुंचने के लिए जो आपने रास्ता अपनाया है, उस रास्ते में जितनी आपने डिस्टेंस चली होगी वो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो कितना होगा, 40 20 60 20 80 85 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट बाय द ऑब्जेक्ट और बाय अस इज 85 किलोमीटर। ओके। अगर वो ऐसा कहता है, देखिए कि आप पन्ना तक गए, दैट मींस you moved from D to P and then returned from P to D। आप D से P तक गए और P से D फिर वापस आ गए। तो अब आपसे कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो देखिए सीधा सीधा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था और एंड पॉइंट कहाँ है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट D था, वहां से आपने जो पाथ फॉलो किया, जो रास्ता मिला आपको, अपनाया आपने, वो पन्ना तक गए और पन्ना से फिर वापस यहाँ आ गए। दैट मीन्स उसी पोजीशन में आप दोबारा पहुंच गए। तो पहले आप उस पोजीशन से जब चले थे तो 25 किलोमीटर चले, फिर उस पोजीशन तक आने में भी आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन 25 + 25 = 50 किलोमीटर। व्हाट, 50 किलोमीटर। क्लियर। तो डिस्टेंस का सीधा मतलब ये होता है कि आपने अपनी जर्नी के दौरान जो रास्ता लिया है, जो रास्ता कवर किया है, उस रास्ते में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर करी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पोजीशन। अब समझिएगा, कई बार वो आपको तो एक ऐसे पूछेगा कि भाई टोटल डिस्टेंस बताओ यात्रा के दौरान ड्यूरिंग ट्रेवल। अगर ऐसा हो जाए 25 किलोमीटर यहाँ से गया, डी से कहाँ आया, पी तक, पी से मैंने फिर बताया था ये अमानगंज गया 40 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद गुनौर आया 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए ऑब्जेक्ट देवेंद्र नगर से अमानगंज तक, दैट मींस द हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डी टू ए। डी से ए के बीच में जब वो मूव करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आप बता दें कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट डी है और जो आप पूछ रहे हैं वो फाइनल पॉइंट है ए। इसका मतलब 25 और 40 65 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करी। ए टू पी भी पूछ सकता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट डी है। अगर उसने ऐसा पूछ दिया, ये तो पूरा आपको बता दिया कि ये यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से। अब पूछ रहा है कि बताइए कि
पन्ना से कुनौर जब गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बता सकते हैं पन्ना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और कुनौर एंड पॉइंट हो जाएगा। इसमें 40 + 20 सर 60 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है पन्ना से जब कुनौर में गया है। तो क्लियर। तो जिसके बारे में, जिस ड्यूरेशन के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है, उसी ड्यूरेशन में आपको पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से करी है जर्नी और एंड कहाँ पे करी। पन्ना से कुनौर के लिए पूछा है तो आपको पता है कि डी से पहले पी में आया, फिर ए में गया, फिर जी में गया, तो मतलब पन्ना से पहले अमानगंज गया, फिर कुनौर गया, तो वो आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, मतलब उसका सम आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर। सो देखिए, अब हम जब भी बात करते हैं तो कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ये हमको पता है ना। सो डिस्टेंस जो है क्या है, डिस्टेंस में इतनी सारी मैंने बातें कर ली, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्शन। तो डिस्टेंस जब भी हम बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपोजिट है, कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड वाइज जा रहा है, रिवर्स वाइज, कुछ नहीं। डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस हमने बता दिया। क्लियर। इसका मतलब कि डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी मीन वैल्यू, वैल्यू क्या है। ओके। सो सेकंड है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट क्या होती है, तो भैया लेंथ किसमें मेजर होता है, लेंथ मेजर होता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मीटर में। सो द ऐसा यूनिट इज मीटर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर। सिंपल, आप एस से भी इंडिकेट होता है और डी से भी इंडिकेट होता है, फर्क कोई पड़ता नहीं है ज्यादा। क्लियर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप इसलिए डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक कंपैरिजन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आप थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही जो है ट्विन है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी तो डायरेक्शन की भी बात करी जाएगी, मैग्नीट्यूड की बात तो करी ही जाएगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन की भी बात करी जाएगी। कैसे, देखिए, मान लीजिए आप देवेंद्र नगर में थे, यू आर एट ए डी पॉइंट, ओके, एंड यू स्टार्टेड अ जर्नी टू पन्ना। पन्ना आप जा रहे हैं, पन्ना गए 25 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद पन्ना से, तो जब आप पन्ना गए 25 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है। क्या है, लेंथ है, बट इट इज द मिनिमम लेंथ। व्हाट, मिनिमम लेंथ। कि पन्ना और देवेंद्र नगर के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है इस यात्रा के लिए, डी से पी के लिए, डी पॉइंट से। तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, जहां से जर्नी स्टार्ट होती है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन। क्लियर। और ये कहां तक की यात्रा की हम बात करें, अभी पन्ना तक की, तो कहां पहुंच गए, पन्ना, तो ये क्या कहला जाएगा बेटा, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। और इसकी जर्नी कैसी हो रही है बेटा, सर डी टू पी, देवेंद्र नगर से कहां जा रहा है, पन्ना। ये क्या हो गई इसकी डायरेक्शन, क्या हो गई, डायरेक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई देवेंद्र नगर से जब पन्ना गया था तो मिनिमम लेंथ क्या है, भाई स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो जो सीधी लाइन से मिनिमम लेंथ आइडेंटिफाई कर देते हम लोग, तो जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी है, 25। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट सर इसका, अगर देवेंद्र नगर से पन्ना तक की बात करें तो 25 किलोमीटर है। लेकिन 25 किलोमीटर अगर हमने बता दिया, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस में कि वहां भी सर देवेंद्र नगर से पन्ना का डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर आ रहा था, तो अगर 25 किलोमीटर बस लिख देंगे तो वो डिस्टेंस ही हो जाएगा। और क्या बताना पड़ेगा यहाँ, ताकि डिस्टेंस से हम डिफर कर पाए इसको, तो हम क्या बताएंगे, सर डी टू पी। देखिए, जब हमने डिस्टेंस बताया था तब हमने कुछ नहीं बताया था, हमने सिर्फ इतनी बात करी थी कि भाई वो देवेंद्र नगर से पन्ना जा रहा है, तो हमने कह दिया सर लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इज 25 किलोमीटर। बट अगर उल्टा हो जाता, वो देवेंद्र नगर से पन्ना आ रहा होता, तब भी तो डिस्टेंस 25 किलोमीटर ही रहती ना। तो भाई डिस्टेंस क्या है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई जाती कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ है। अगर मैं कह देता हूँ वहां कि भाई पन्ना से देवेंद्र नगर आया हूं मैं, तो आप बताते कि 25 किलोमीटर सर घूम के आए हैं आप। अगर कोई कहता कि मैं देवेंद्र नगर से पन्ना गया हूं, तो वो भी क्या होता, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का मतलब यह है कि भाई दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस, चाहे वो इस तरफ से इस तरफ आ रहा हो या इस तरफ से इस तरफ जा रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है
तो अगर आपने कहा मैं देवेंद्र नगर से पन्ना जा रहा हूं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा आपका 25 किलोमीटर एंड द डायरेक्शन इज देवेंद्र नगर टू पन्ना। क्लियर? अगर आप वापस आ रहे हैं, वहां से कोई दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो पन्ना से देवेंद्र नगर आने में जो लेंथ कवर होगी वो भी कितनी होगी, 25 किलोमीटर मिनिमम लेंथ वही होगी। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या बताना पड़ेगा, सर पन्ना टू देवेंद्र नगर। बसेस में आपने लिखा देखा होगा ना हमेशा, देवेंद्र नगर टू पन्ना, जो उस साइड जा रही होगी वो पन्ना टू, घर में जो भी कन्वीनियंट व्हीकल है हमारा, ठीक है, वो ऐसे ही उसमें आइडेंटिफिकेशन रहता है। सो देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द, it is also the length covered, but what, minimum length covered between, minimum length covered from during movement, minimum length covered during motion between initial and final positions। अब समझिएगा बात को, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम लेंथ होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम उसको मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में रोल कॉल सबसे बड़ा होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, यात्रा स्टार्ट कहाँ से करी गई है और जो है खत्म कहाँ पे करी गई है, या किस यात्रा के बारे में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक याद रखिएगा, अगर आपको मोशन समझना है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को बहुत जरूरी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बिहाफ में वेलोसिटी आती है, उसी के बिहाफ में स्पीड की हम बात, एक्सेलरेशन की भी बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, मिनिमम लेंथ मैंने क्यों लिखा, क्वेश्चन तो ये राइज होता है, सर मिनिमम लेंथ क्या है, देवेंद्र नगर और पन्ना, दैट मींस डी और पी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, तो आप मिनिमम लेंथ क्यों यूज कर रहे हैं? इसका रीजन देखिए, आप डी और पी के बीच में जो आपका रिस्पेक्टिव मूवमेंट है, आप डी से पी की तरफ कितने तरीके से जा सकते हैं, समझिएगा बात। डी से पी की साइड आप डायरेक्शन वही होगी क्या, डी टू पी, देवेंद्र नगर से आप पन्ना ही जाएंगे, लेकिन कितने तरीके से जा सकते हैं। आप ऐसा जाइए और पी में जाइए तो भी आपका इनिशियल पॉइंट डी ही रहेगा और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा, पी, बट लेंथ जो कवर होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसा जाइए और ऐसा चले जाइए तो आपका जो मूवमेंट है वो डी से पी की ही तरफ रहेगा, लेकिन बेटा डायरेक्ट जो डिस्टेंस है आपकी वो 25 से ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसा जाइए और ऐसा चले जाइए तो भी आपकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, तो वो क्या रहेगी, डी टू पी ही रहेगी, लेकिन लेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो आई हैव यूज्ड द वर्ड, or we can say for defining the displacement we use the term minimum length between the initial and final position, or we can say minimum length covered between the initial and final position during the movement in a particular direction। what is the particular direction? particular direction क्या है, समझिए भाई, हम मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं, डी से पी, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ये हो गया। कोई पन्ना से देवेंद्र नगर आ रहा होगा तो उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, पटना टू देवेंद्र नगर। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई बंदा गया भैया देवेंद्र नगर से पटना, तो बताओ डायरेक्शन क्या, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव। क्लियर? तो देवेंद्र नगर से पटना वाली डायरेक्शन आप क्या कर लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। सर 25 किलोमीटर, समझिएगा आपको, 25 किलोमीटर। अब कोई पटना से देवेंद्र नगर आ रहा है, मतलब डायरेक्शन में उल्टा आ रहा है ना। अगर मैं देवेंद्र नगर से पटना गया हूं तो मेरे लिए वो डायरेक्शन सीधी हो गई, तो जब कोई पन्ना से देवेंद्र नगर आ रहा होगा तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन की अपोजिट मूवमेंट कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि सर -25 किलोमीटर। बात समझ में आई? इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सेंस क्या होता है, तो इसका सिर्फ इतना सेंस होता है कि सर ये
इस डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। क्लियर? इसका डिस्प्लेसमेंट उल्टा हुआ है। अगर मैं देवेंद्र नगर से पन्ना पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूं, बताता हूं कि 25 किलोमीटर मूवमेंट हुआ है, और उसी समय में कहूं कि सर एक बंदा और है तो देवेंद्र नगर से मतलब उसने भी D to P ट्रेवल किया है या P से D के बीच में ट्रेवल किया है, अब किस डायरेक्शन में उसने ये नहीं बताया और लिख दिया इसका जो ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है -25 मीटर। सो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे भैया जब देवेंद्र नगर से पन्ना हम पॉजिटिव लेते हैं तो अगर उसने 25 किलोमीटर की यात्रा इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में करी है, इसका मतलब वो पन्ना से देवेंद्र नगर की तरफ आ रहा है। वेरी क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस का इंडिकेशन सिर्फ इतना होता है बेटा कि आपको डायरेक्शन पता चल जाती है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है। दैट मींस जो कंसर्न डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं वही है या उसका अपोजिट है। अगर वही है तो पॉजिटिव है, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। वेरी क्लियर? ओके। सो हम हमेशा किसकी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे? दैट इज द मिनिमम लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जहां से इनिशियल और फाइनल पॉइंट स्टार्ट हुआ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कहां से? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? हमको चाहिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन। सो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रोल प्ले में आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब देखिए प्लस माइनस सिर्फ आपको क्या बताता है बेटा कि डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब जो पीछे लेंथ लिखी हुई है अगर उसकी हम बात करेंगे तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? लेंथ मीजर तो मीटर नहीं किया जाएगा ना। सो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो ये की पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंक्लूडिंग डेफिनेशन। क्लियर? ओके। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट के कुछ और फीचर्स जो है पढ़ते हैं, मतलब कैसे फाइंड किया जाता है डिस्प्लेसमेंट, ये बात करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने 4 आपको ग्राफ बना के रखे हुए, 4 मोशन का रिप्रेजेंटेशन 4 डायग्राम्स में किया हुआ है। तो इसमें हमको अब डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। देखिए फर्स्ट में ये कह रहा है कि आप देवेंद्र नगर में हो, ठीक है, और आप पन्ना गए और पन्ना से आके कहाँ आ गए? फिर से देवेंद्र नगर आ गए। समझिएगा, तो आप देवेंद्र नगर में थे, पन्ना गए और पन्ना से लौट के फिर कहाँ आ गए? देवेंद्र नगर आ गए। क्लियर? तो मतलब आप जहां से चले थे वहीं आ गए। तो यहाँ पे आपको लेंथ भी बताना है, मतलब डिस्टेंस भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो डिस्टेंस कितनी है भैया? डिस्टेंस देखिए, आप देवेंद्र नगर से पन्ना गए, यहाँ 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर ये हुआ, और लौट के वापस देवेंद्र नगर आए तो 20 और ट्रेवल करना पड़ा। तो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 40 किलोमीटर। क्लियर? अब बताइए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप देवेंद्र नगर से भैया पन्ना गए थे और पन्ना से वापस देवेंद्र नगर आ गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? देवेंद्र नगर, क्योंकि आप यहीं से चले थे, और फाइनल पॉइंट क्या होगा? देवेंद्र नगर, क्योंकि आप यहीं से चले थे। तो जब आप अपने घर से चले थे और घर में ही वापस आ गए तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? देवेंद्र नगर, देवेंद्र नगर। तो जब आप देवेंद्र नगर में ही हो तो इसका मतलब कि क्या आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न में ट्रेवल किया? नहीं। जब आप वहीं से चले और वहीं वापस आ गए, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब आपके एक हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। क्लियर? इसके बाद पहला हो गया आपका। दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने जो x लिखा है ये डिस्टेंस लिखी है, लेंथ लिखी है AB के बीच की, y लेंथ लिखी है BC के बीच की, और z लेंथ है AC के बीच की। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन करता हूं मैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इफ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम A to B एंड देन B to C। मतलब A से C तक जाने में उसने कितनी लेंथ कवर करी? तो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो इस दौरान जो ये पाथ फॉलो हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x + y। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x + y। अगर पूछे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैंने बताया था कि अगर जिस दौरान की डिस्प्लेसमेंट, जिस मूवमेंट की डिस्प्लेसमेंट को पूछ रहा है उसमें क्या करिए आप? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता करिए। A से चला है और C तक पहुंचा है तो इनिशियल A है और फाइनल A है, स्केल रख दीजिए और एक सीधी बिल्कुल लाइन खींच दीजिए। तो हमने बताया ना कि AC की इसीलिए मैंने पहले से दे दी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा?
जेड मीटर, कितना हो जाएगा जेड मीटर। क्लियर, ओके। दैट इसमें आइए, तो ए से बी में गया, बी से सी में और सी से डी में। फिर कह रहा है बताइए कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ए से डी में तक जाने में जो डिस्टेंस कवर किया है x + y + z कवर किया है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी बेटा AD, और AD की वैल्यू कितनी है W। दैट मींस डिस्टेंस = x + y + z एंड डिस्प्लेसमेंट = W मीटर, क्योंकि ये लेंथ दी है। बहुत बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने एक एजम्पशन के तौर पे ले लिया है। ओके, अगर आपसे इसी फिगर में ये पूछता कि बताइए भाई ए से डी तक चला, अच्छी बात है, ये तो हमको पता। अगर वो ये कहता कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी, ए से सी में जब गया तो डिस्टेंस बताइए। तो ए से सी मतलब इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी। तो ए से पहले बी में गया है, उसके बाद सी तक पहुंचा है। तो ए से सी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x + y, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा लेंथ बिटवीन द ए एंड सी। जो भी जितनी लेंथ होगी वो AC में, वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, स्केल रखना। ठीक है, अगर यही बात है, अगर A से B की बात करता है, कहता है A से B में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो A से B में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इनिशियल पॉइंट A फाइनल पॉइंट B, तो क्या हो जाएगा x। अब डिस्प्लेसमेंट दोनों इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को स्केल से रख दीजिए, यही लेंथ आएगी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया x। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा कहे भाई B से C में बताओ या B से D में बताओ, वो कहे कि फाइंड द डिस्टेंस and the displacement between B and C for this question, तो B and C इसका मतलब इनिशियल पॉइंट B हो जाएगा और फाइनल पॉइंट D, B and D के लिए तो फाइनल पॉइंट D हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट, तो लेंथ कितनी चला है y and z, that means length covered between B and D is y + z and the displacement is the distance between minimum distance between the B and D। क्लियर, तो ये लेंथ हो जाएगी उसकी। क्लियर, ओके। वैसे इसमें एक सर्कुलर पाथ मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, A से B तक मूव करता है 5 मीटर, B से C तक मूव करता है 5 मीटर। तो कह रहा है कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए A से C तक पहुंचने में उसने डिस्टेंस कितना चला, ये चला फिर ये चला, 5 + 5 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मिनिमम स्केल रखिए और ये लाइन खींच दीजिए। तो मैंने इसका इंडिकेशन कर दिया है x से, किससे, x से। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज AC। ठीक है, और कितना x मीटर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये A से कहां गया, C की साइड गया। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो द डिस्टेंस इज द लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इन सर्टेन टाइम पीरियड। Okay, so we can also say maximum length covered during the motion। जितना मोशन किया हुआ है, जो जिस बारे में पूछ रहा है ड्यूरेशन के लिए, उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कवर किया है, उसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ और वी कैन से मिनिमम लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है मोशन के दौरान, तो उस दौरान जो मिनिमम लेंथ होती है इनिशियल फाइनल पोजीशंस की, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। दैट मींस देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, और वी कैन से डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट इन द डिस्प्लेसमेंट we need a particular direction, where is the initial point, where is the final point, and what the minimum length. So this particular direction makes the displacement a vector quantity. This displacement is a vector quantity. Now for the distance, the magnitude of distance की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है और ज्यादा हो सकती है, कम कभी नहीं हो सकती। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने ट्रेवल करना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और कहां पहुंच गए, पॉइंट बी तक, मान लीजिए 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब बताइए पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सर कहेंगे सर 20 किलोमीटर। अगर मैं कहूं बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम लेंथ क्या है, 20 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गए। क्लियर। अगर मैं कहूं देखिए भाई ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 10 किलोमीटर वापस आया, मतलब पहले ए से बी में गया, फिर ए से बी से सी तक गया,
तो अब बताइए डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैक्सिमम लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। पॉइंट ए से बी तक गया 20 किलोमीटर ट्रेवल किया और बी से सी तक आया तो 10 किलोमीटर और ट्रेवल किया। इसका मतलब जो 30 किलोमीटर है वो क्या हो गई, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम लेंथ, मतलब ये वाला लेंथ। तो देखिए 20 पूरा था और 10 कवर कर लिया, तो यहाँ कितना बचा, 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया, अब 10 किलोमीटर हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करता जाता है, कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसने जैसे ही डायरेक्शन चेंज करी या मूव किया कहीं और को, तो स्ट्रेट लाइन के अलावा जैसे ही मूव करेगा तो लेंथ की तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बराबर हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, या फिर हमेशा कम रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। दैट मींस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर टू द डिस्प्लेसमेंट। आप इसको अपने पूरे वर्डिंग टर्म में लिख सकते हैं, मैंने मैथमेटिकल टर्म में। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर आर इक्वल टू डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो हम वैल्यू लेते हैं, देखिए ये वापस भी लौटा तो हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर मैं कहूं सर ये डिस्प्लेसमेंट सर 10 किलोमीटर आया तो नेगेटिव वैल्यू लेने में कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए कितना ट्रेवल करा, ए से बी की डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली हमने, और इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो ये हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन। सो ए से बी में चला 20 किलोमीटर, सो सर डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 20 किलोमीटर। और ए से बी से सी में चला इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस माइनस 10 किलोमीटर। सो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर। बात समझ में आ गई अब आपको कि ये मिनिमम लेंथ इसलिए लेते हैं क्योंकि जितना वो रिटर्न होता है उतना माइनस हो जाता है। क्लियर, तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसमें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 11th-12th में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब मैं बताऊं यहाँ कैसे। मान लीजिए कि यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव आ गया। अगर हम नेगेटिव की बात करें, मान लीजिए ए से मूव किया बी तक 10 किलोमीटर और फिर बी से उल्टा जाके मूव करता है सी तक 30 किलोमीटर। कितना, 30 किलोमीटर। ओके, अब कहे भाई डिस्प्लेसमेंट बताइए सर। तो देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ए से बी तक गया 10 और बी से सी तक गया 30, तो 30 प्लस 10 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक गया 10, दैट मींस प्लस 10 किलोमीटर, और बी से सी अपोजिट डायरेक्शन में गया सो माइनस 30 किलोमीटर। माइनस 30 दैट मींस माइनस 20 किलोमीटर। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि भाई अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ये मूवमेंट इसका किस साइड है, माइनस 20 किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट है ए के अपोजिट साइड है, मतलब ए के इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो उस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर, सो दैट मींस द डिस्टेंस कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो का मैंने बता दिया, जहां से आप चलो वहीं पे वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर ना, ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर, मीटर में ही मेजर करते हैं, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मेजर्ड इन द मीटर। क्लियर, सो मैंने बहुत डिटेल में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाने की कोशिश की है और शायद समझ में भी आ गया होगा, इतना टिपिकल नहीं है। अगर जिसको समझ में नहीं आया सो प्लीज प्रिफर द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9 चैप्टर 8 motion and then jump to this video. Okay, so next one is the distance displacement has completed speed and the velocity. So students, स्पीड और वेलोसिटी को हम डायरेक्ट कंपैरिजन में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया है तो देखिए जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसका मतलब मूवमेंट के दौरान आपको पता है वो कुछ डिस्टेंस चलता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, ठीक है। इसका मतलब उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, ये उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं, स्पीड से। दैट मींस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इन हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली वेलोसिटी इज द displacement upon time, that means how much time it takes to cover the displacement, or we can say displacement in particular direction. Clear, so we can define it, speed it is the rate of change of distance with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से वो चल रहा है, मतलब कितनी ज्यादा या कम स्पीड को कवर कर रहा है, सॉरी कितनी ज्यादा या कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
और भी कैन से डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड और पर आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं स्पीड से। सिमिलरली वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस तेजी से पर सेकेंड, पर आवर और पर डे के हिसाब से, पर सेकेंड की जनरली बात करेंगे ऐसा यूनिट में, तो पर सेकेंड कितना तेज या कम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? सो दैट मींस द फार्मूला फॉर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो अब देखिए कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो टाइम बताने के लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डिपेंडेंट है, इसका मतलब स्केलर। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट में डिपेंडेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए टाइम दोनों के लिए सेम है, एक एक सेकंड की हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के लिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी के, और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? स्पीड के। इसका मतलब जहां डिस्टेंस बराबर होगा तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा तो स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर? अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इसका सीधा मतलब यह है स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ था वैसा ही है, स्पीड इज ऑलवेज, ऐसा नहीं लिखते, वैसे ही लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, ताकि आपको याद रहे। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू velocity. In the similar way we can write magnitude of velocity is always smaller or equals to speed. Clear? Third one is speed is scalar quantity. Third one is velocity is वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ पॉइंट इज, देखिए जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, आप ऐसा समझ लीजिए, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। क्लियर? तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जैसे ही टर्म्स आएंगे, यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड is always positive, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी वैल्यू जो है, और यहां पे क्या होगा? वेलोसिटी कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। फिफ्थ इज द एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट निकालते कैसे, अगर आप लोगों से ना बनता हो तो रटने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, और अपॉन टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। तो इसको हम ऐसा नहीं लिखते, मीटर अपॉन सेकंड नहीं बोलते, इसको क्या बोल देते हैं? मीटर पर सेकंड। सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। वैसे ही वेलोसिटी में देखिए, SI यूनिट इज, डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है भैया? मीटर में ही तो मेजर होता है, और टाइम किसमें मेजर होता है? सेकंड में। सो द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके, सो ये जनरल टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में बढ़ते हैं आगे,
और बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। Okay students, so before learning average speed and the average velocity, we need to learn the uniform and non-uniform motion. That means which type of motion is called uniform and which called non-uniform motion. So the uniform and non-uniform motions are described by the distance covered or displacement covered in equal time intervals. So इसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी मोशन वही मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो इक्वल टाइम इंटरवल में। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सो द मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन व्हेन और इफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग द मोशन। एंड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a motion is called non-uniform if the distance or displacement is not equal in equal time intervals। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? तो इसको ऐसा समझिए कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कौन कौन डिस्क्राइब करता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए इक्वल टाइम स्लॉट में या इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म है। अदरवाइज अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम स्लॉट में इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका सिंपल मीनिंग ये भी है कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो अगर उसने ड्यूरिंग द मोशन डायरेक्शन चेंज कर दी तो मतलब माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो वैल्यू माइनस किया जाएगी। इसका मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। समझिएगा बात? क्लियर? तो अब हम देखते हैं कैसे इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट बना समझने के लिए टाइम इंटरवल लिया, यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया। मान लिया ऑब्जेक्ट 0 सेकंड से, मतलब इनिशियल टाइम से चलना स्टार्ट करता है, सो 0 to 1 सेकंड के बीच में जब वो ट्रेवल करता है तो जो ट्रेवलिंग टाइम होगा, क्या होगा? ट्रेवलिंग टाइम वो कितना होगा? 1 सेकंड का। ये टाइम इंटरवल है। तो डिस्टेंस मान लिया हमने, उसने कवर किया 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी मान लिया कि कवर किया 2 मीटर। क्लियर? दोनों के बिहाफ में बता रहा हूं। अब अगला जो टाइम स्लॉट होगा, देखिए इक्वल टाइम इंटरवल लिखा है, मतलब अगर आपने पहला टाइम इंटरवल जो लिया है उसी तरीके का दूसरा टाइम इंटरवल लेना होगा जिसमें टाइम कितना लगे? 1 सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 to 2 सेकंड दूसरा टाइम इंटरवल है। कितना? 1 to 2 सेकंड। यहाँ भी टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड की यात्रा होगी। डिस्टेंस फिर कवर कितना होना चाहिए? 2 सेकंड। कितना कवर होना चाहिए? 2 सेकंड। फिर से 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होना चाहिए? जब पहले में 2 था तो दूसरे में भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही होना चाहिए। नेक्स्ट में आइए, सो 2 to 3 सेकंड में यात्रा कितनी हुई? 1 सेकंड की। फिर से डिस्टेंस सेम होना चाहिए 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए 2 मीटर। अब देखिएगा कैसे। अब हमने तो एक टाइम इंटरवल बना लिया, अब हम बनाते हैं टाइम सेकंड के बिहाफ में। तो यहाँ हम लेंगे टाइम, हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, अभी नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। यहाँ लेंगे टाइम, यहाँ लेंगे डिस्टेंस और यहाँ लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस डेटा से ये वाला अपना डेटा बनाऊंगा, टाइम पहले कितने था? 1 सेकंड लगा, टाइम सेकंड में रहेगा। सो फर्स्ट सेकंड में, मतलब 0 to 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? सर 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सर 2 मीटर। 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड का मतलब 1 to 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड 1 + 1 2 सेकंड हो गए। दैट मींस 0 to 2 सेकंड में कितना चला? तो 2 पहले चल चुका था और 2 और चला, तो कितना हो गया? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी यही है, 2 पहले चला था फिर 2 और चला, तो कितना हो गया? 4 मीटर। वैसे ही 3 सेकंड, 3 सेकंड का मतलब 3 सेकंड मतलब टोटल 3 सेकंड, 1 2 3। तो 3 सेकंड में कितना चला? 2 + 2 + 2, तो टोटल 3 सेकंड में चल गया 6 मीटर और यहाँ भी चल गया 6 मीटर। सो यहाँ आपको बात समझ में आई कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ओके, सो फॉर डेफिनेट टाइम
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में वो जो इक्वल वैल्यू है वो हर बार ऐड होती जाएगी। जैसा हमारे पास है 2 + 2 + 2, दैट मींस 2 में 2 जुड़ेगा नेक्स्ट सेकंड में, तो कितना आ जाएगा 4, देन 6। सो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो आपका जो है ये इस तरह का होगा। फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर चला तो दूसरे सेकंड में, मतलब फर्स्ट में जो चल चुका और दूसरे में तो कितना चलेगा 4 मीटर। अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो फर्स्ट से सेकंड और फर्स्ट सेकंड के बीच में कितना चला है, तो 2 फर्स्ट में चला था और 2 के बाद सेकंड में जो चला है वो कितना चला है 4, तो 2 4 - 2 दैट मींस 2 मीटर चला है सेकंड में। ऐसे ही 2 मीटर चला है थर्ड सेकंड में। तो ये आपको बात समझ में आई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल वैल्यू से हर एक सेकंड में बढ़ता जाएगा। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहीं से समझ लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग मोशन। मतलब पहले में मान लीजिए डिस्टेंस 2 कवर किया था, 1 सेकंड का ही टाइम स्लॉट है, दूसरे में कितना कवर किया 1 और तीसरे में कितना कवर कर लिया 5। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वैसे ही यहाँ मान लीजिए पहले में 2 था, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया और तीसरे में हो गया 0 मान लीजिए। ठीक है? तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में डिस्टेंस कितना चला नॉन यूनिफॉर्म के लिए सर 2 मीटर चला है, ठीक है, ये भी 2 मीटर। सेकंड जो है सेकंड में 2 सेकंड में कितना चला, तो 2 + 1 सर 3 मीटर चला है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 + 2 सर 5 मीटर। ओके। और थर्ड सेकंड में तीसरे सेकंड तक कितना चल चुका था 2 + 1 + 5 6 + 2 8 मीटर। और यहाँ कितना चला था +0 करेंगे तो 5 मीटर ही आएगा, 3 + 2 + 0। ओके। तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम में ओके अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल वैल्यू से इंक्रीज होता है, इसका मतलब अगर आपको वैल्यूज दी हुई है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल वैल्यू से इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन आएगा। अगर इक्वल वैल्यू से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, डिस्टेंस तो डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? तो हम ग्राफिकल जब एनालिसिस करेंगे तब ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही वैल्यूज लेके और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। बस एक बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन भी चेंज करता है तो इसका मतलब वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि वो मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है अगर डायरेक्शन चेंज करता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। So now, for the uniform and non-uniform motion, we have learned about the distance and displacement and their forms. That means for equal time interval, अगर distance और displacement आपका equal है, तो मैंने अभी बता दिया आपको करके। तो अगर हम टाइम लेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो इसमें क्या होगा, अगर पहले सेकंड में 2 मीटर चल रहा है तो दूसरे सेकंड में 2 + 2 4 मीटर चलेगा, क्योंकि हर एक सेकंड में उसको इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। तीसरे सेकंड में 4 + 2 चलेगा, 6 चलेगा, 8 चलेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेटा लेके, एक एज्यूम्ड डेटा है, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, आप भी एज्यूम कर सकते हैं। और टाइम हमारे पास ये है, सेकंड में है टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। क्लियर? तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना चल रहा है 2 मीटर, तो सेकंड टाइम की एक्सिस ये है और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस ये है। तो एक सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ने मूव किया है वो कितना किया है 2 मीटर। तो आपसे ग्राफ प्लॉट करना आता है। 2 मीटर वाली लाइन ये है, 1 मीटर, तो ये कितना हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा सेकंड में 4 मीटर, सो सेकंड में कितना मूव कर रहा है 4 मीटर। थर्ड सेकंड में कितना करेगा, कर रहा है 6 मीटर। एंड फोर्थ सेकंड में कितना कर रहा है 8 मीटर। क्लियर? सो इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। मान लीजिए 0 सेकंड में 0 मीटर कवर करता है। क्लियर? सो दैट इज द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो टाइम एक्सिस है उसके साथ कोई एंगल बनाएगा और ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। सो फॉर द यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ is inclined straight line। और अब बात करें अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए,
तो देखिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस है और ये टाइम एक्सिस है। इंक्लाइंड ग्राफ कैसा हो सकता है, अभी ये स्पीड देखो डिस्टेंस कवर बढ़ रहा है हर सेकंड में, हो सकता है किसी ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो डिस्टेंस कवर घटने लगेगा, तो ये भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी ध्यान रखना क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर। फिर इसके बाद ये भी आपका, अगर ऐसा जरूरी नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, ये भी आपका क्या है, ये जो है ये भी आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर। फिर इसके बाद ये भी आपका यहां से भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन रहेगा और कोई ना कोई एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस। क्लियर। 90 डिग्री बस एंगल नहीं बनाएगा, अभी आप उस चीज को समझने लायक नहीं पढ़ पाए हो तो हम बाद में बताएंगे। सो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ग्राफ अदर देन द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अदर देन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी हो। डिस्टेंस टाइम है, मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा बताइए मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। भाई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, दैट मींस सर दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर दूसरा बनाते हैं, ऐसा चले आइए, इज दैट यूनिफॉर्म, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सर नॉन यूनिफॉर्म, व्हाई, बिकॉज़ दैट्स नॉट अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर कौन सा ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी दिया है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ऐसा और ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मान लीजिए ऐसा जा रहा है ऐसा, तो भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर। ओके, तो समझ में आ गया। तो अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करेंगे। तो एवरेज स्पीड फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कैलकुलेटेड बाय द सेम फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ट्रेवल करता है, उस ट्रेवलिंग के दौरान वो अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग टाइम और अलग अलग टाइम में उसको कवर करता है। क्लियर। तो इसका मतलब अलग अलग एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर सिटी टू सिटी मान लो घूम रहा है, तो एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में उसको कम टाइम लगता है, दूसरे सिटी से तीसरे सिटी जाने में उसको ज्यादा टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट टू पॉइंट जब वो ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। लेकिन उस अगर हम कहें कि वो 10 सिटी घूम के आया अलग अलग स्पीड से, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी पूरी यात्रा में, जब वो पूरा ट्रेवल कर चुका है। जैसे ये है एक एग्जांपल मैंने लिया है, एंड ट्रेवलर ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस है 25 मीटर, ए टू बी के बीच में कितना टाइम लेता है 5 सेकंड। बी टू सी डिस्टेंस है 25 मीटर, कितना टाइम लेता है 10 सेकंड। ठीक है, और सी टू डी 50 मीटर डिस्टेंस है, कितना टाइम लेता है 5 सेकंड। इसका मतलब अगर मैं ए और बी के बीच में स्पीड निकालूं, स्पीड 1 मान लेता हूं इसको, ए और बी के बीच में, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस 25 अपॉन 5, सो 5 मीटर पर सेकंड। S2 मतलब B टू C के बीच में अगर मैं स्पीड निकालूं तो कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 25 और टाइम कितना लगा B से C तक जाने में 10 सेकंड, दैट मींस 2.5 मीटर पर सेकंड। S3 C टू D, तो C टू D में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है 50 और टाइम कितना लगा 5, 50 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। इसका मतलब इस बंदे ने A से और जब D तक ट्रेवल किया, क्लियर, तो अलग अलग A से B तक स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, B से C तक 10 थी और C से D तक कितनी है, B से C तक 2.5 और C से D तक 10 मीटर पर सेकंड। ओके ओके, सो देखिए ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से पूरा उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई देखो ऑब्जेक्ट A टू D तक तो गया, अलग अलग स्पीड से गया, A से B तक इतनी स्पीड से गया, B से C तक इतनी और C से D तक इतनी, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ कि A से D तक ट्रेवल करने में इसने एवरेज स्पीड कितनी यूज करी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। सो टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी की हम बाद में बात करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है A से D तक जाने में, भाई 25 25 50 50 100, सर 100 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है सर, 5 + 5 10 10 20 सेकंड। सो
ये डिस्टेंस अभी नहीं लिखना, यूनिट बाद में लिख देंगे अपन। 20-25, दैट मीन्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेवलर इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अलग अलग डिस्टेंसेस को एक जो ट्रेवलर है या फिर ऑब्जेक्ट है मूवमेंट के दौरान अलग अलग टाइम में उसको कवर करता है। सो द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। तो एवरेज स्पीड कब निकाली जाती है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक चीज बताना भूल गया था यहाँ कि एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो कब कंडीशन के लिए फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल लेंथ कवर करता है अलग अलग स्पीड से, क्या इक्वल लेंथ कवर करता है अलग अलग स्पीड से, तब क्या होगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से ट्रेवल करता है बी तक और बी से ट्रेवल करता है सी तक, दोनों की डिस्टेंस ए से बी तक जाता है x मीटर पर सेकंड से, मतलब इसकी ये स्पीड है, और बी से सी तक जाता है y मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी। हम इसको कुछ भी मान लो, या फिर आप कह सकते हो कि ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ different velocities, different speeds, then the average speed SAV is equals to 2xy upon x plus y। ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 इक्वल स्पीड, जैसे उसने कहा कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पन्ना गया और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पन्ना से देवेंद्र नगर आ गया, इसका मतलब जब वो देवेंद्र नगर से पन्ना गया तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, एक 10 किलोमीटर पर आवर से मतलब वो हो गया x, और जब पन्ना से देवेंद्र नगर तो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही हो गई ना, 25 तब भी गया था, गया भी है और आया भी है, तो कितनी हो गई, जो वापस आने वाली है वो वही। अगर ऐसा कहे ना भाई 25 किलोमीटर यहाँ से कहाँ गया, पन्ना, और पन्ना से 25 किलोमीटर मान लीजिए गुनौर है ना, तो 25 किलोमीटर गया गुनौर, तो मतलब लौटा नहीं, वो आगे ही गया, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करी। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए वो किसी भी कंडीशन में, है ना। तो x पन्ना जाने वाली और पन्ना से गुनौर जाने वाली y हो जाए। फिर तीसरा, थर्ड क्या कहता है कि अगर भाई एक डिस्टेंस है, मान लीजिए पन्ना से देवेंद्र नगर से पन्ना की डिस्टेंस है, a से b का डिस्टेंस है, और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a से b का जो हाफ डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और y जो डिस्टेंस, बाकी जो हाफ डिस्टेंस है y किलोमीटर, इसका मतलब इसका ab का हाफ डिस्टेंस, दोनों ये तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर किया। यस डेफिनेटली, ठीक है। सो x और y, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर वो कहे a से b तक गया x स्पीड से और b से a तक आया y स्पीड से, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है। अगर कहे कि जो है a से b तक गया और फिर b से c तक गया, सेम यहाँ x स्पीड से गया, y स्पीड से गया, bc और ab की डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम, स्पीड अलग अलग है, सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, मान लीजिए a से b तक गया और b से c तक गया और c से d तक गया, सो लेंथ ऑफ ab इज इक्वल्स टू bc इज इक्वल्स टू cd, मतलब तीनों लेंथ बराबर है, सिर्फ यहाँ x मीटर पर सेकंड से मूव किया a से b में, यहाँ y मीटर पर सेकंड से मूव किया, और c से d में z मीटर पर सेकंड से मूव किया। सो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मूवमेंट, दैट मींस a टू d, SAB क्या हो जाएगा, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। 3 इक्वल डिस्टेंस कैसे, वो कहते हैं कि एक डिस्टेंस है, उसका 1/3 पार्ट इस स्पीड से, 1/3 पार्ट इस स्पीड से, 1/3 पार्ट इस स्पीड से उसने कवर किया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर वो कह दे कि देखिए एक बंदा ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर इतनी स्पीड से गया, फिर आगे 25 किलोमीटर इतनी स्पीड से गया, फिर आगे 25 किलोमीटर उतनी, डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा, सिर्फ स्पीड चेंज होगी, तो आपको फॉर्मूला यही लगेगा 3 के लिए।
3 अगर है, अगर 2 टाइम्स 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो एक्स वाई 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लग जाएगा। और अगर 3 टाइम्स इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो क्या लग जाएगा 3xyz अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर? ये एक्स्ट्रा आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। ओके स्टूडेंट, सो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से, जैसा स्पीड में था वैसे ही यहाँ है, अलग अलग जो है आपका डिस्टेंसेस को अलग अलग वेलोसिटी के साथ कवर करता है, तब हम उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का कंसर्न 2 तरीके का हो जाता है। अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं है तो सिर्फ आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब पूरे ट्रैवल के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं मोशन में, u से, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं v से अपॉन 2। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हमने, मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, उस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट उस फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वैसे भी आपको पता चल जाएगा, बड़ा मजा आएगा आपको कैलकुलेशन करने में, सिर्फ आप समझते चलिए। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ यहाँ से सीखा है। ओके, देन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम लगा है, दोनों का डिवीजन कर दीजिए, आपकी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट मोशन और ड्यूरिंग दैट मूवमेंट जो है आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, वो हम देखेंगे, है ना। सो अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल। सो इन न्यूमेरिकल के बाद जो है आज वीडियो को हम यहीं लास्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो भी बाकी बचा हुआ है ग्राफिकल एनालिसिस वो मैं बताऊंगा। आप एक बात याद रखिएगा, इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा, वो क्लास 11th का है, वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है। तो उसमें मैंने ग्राफिकल एनालिसिस को बहुत सिस्टम से बताया है, तरीके से बताया है, तो वहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा और नेक्स्ट टाइम में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ग्राफिकल एनालिसिस का भी वीडियो मिल जाएगा क्लास 9th के लिए। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। So students, I have book of class 9th, page number 100. Some questions are given in there. These questions. So let us solve these questions. So question number first at page number 100. Okay. So question number first है आपका, कह रहा है an object has moved through a distance. एक ऑब्जेक्ट है उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है. Can it have zero displacement? If yes, support your answer. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं पेज नंबर 100 में, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस चला है तो क्या उसका जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैंने कह दिया यस, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए। An object has moved from A to B and then B to A. If the distance between A to B is x meter, then the total distance कितना हो जाएगा, x यहाँ गया और x वापस आने में, so x plus x that means 2x meter and the total displacement of the object A से चला था A में ही पहुंच गया, कितना हो जाएगा 0 मीटर। So yes, it is possible if an object covers a distance, its displacement can be 0. बिल्कुल हो सकता है ना। So सपोर्ट के लिए आप ये एग्जांपल वहां पे पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये कह रहा है कि एक किसान है और वो अपने स्क्वायर फील्ड में मूव्स अलोंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। 10 मीटर की स्क्वायर फील्ड की साइड है 10 मीटर, दैट मीन्स स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती है। सो हम मान लेते हैं स्क्वायर फील्ड है ABCD, कंसीडर कर लेते हैं। 10 मीटर मूव करता है 40 सेकंड में, दैट मीन्स 10 मीटर जो मूव करेगा वो कितने सेकंड में करेगा, 40 सेकंड में। तो कह रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट
20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हम लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, तो इसको सेकेंड में बदलिए पहले, तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड में। कितना 140, देखिए 2 मिनट 20 तो 40 सेकेंड के, या तो आप स्लॉट बना ले 40 सेकेंड के, क्योंकि 110 मीटर 40 सेकेंड में चलता है। सो 40 40 40 एंड देन 20, 40 सेकेंड चलेगा। पहले 40 सेकेंड इनिशियल पॉइंट से तो कहाँ बी तक आएगा, फिर दूसरा 40 सेकेंड चलेगा तो कहाँ तक आएगा, सी तक आएगा, फिर तीसरा 40 सेकेंड चलेगा तो कहाँ तक आएगा, डी तक आएगा, फिर क्या लास्ट 20 सेकेंड चलेगा तो कितना चलेगा, 10 मीटर 40 सेकेंड में चलता है, तो 20 सेकेंड में आधे टाइम में कितना चलेगा, आधा, दैट मीन्स 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 5 मीटर। आधी यहाँ पे कोई ई पॉइंट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 40 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है 5 मीटर। क्लियर। तो अगर डिस्टेंस पूछता है डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखिए फाइनल पॉइंट यहाँ है 10 + 10 + 10 + 5 35। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 5 मीटर और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 35 मीटर। कितनी हो जाएगी 35 मीटर। कब, ये हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर। अगर क्वेश्चन है कि 10 मीटर 40 सेकेंड मूव करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन कह रहा होता, उसका सेंस दोनों निकल रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 40 सेकेंड में पूरा मूव करता है, तो हम यहाँ पे 40 सेकेंड में 40 मीटर लेते हैं। बस समझ में आ गए। तो फिर यहाँ 2 मिनट, तो फर्स्ट 40 सेकेंड में कितना चल रहा है, 40 सेकेंड में कितना चलता, पूरा 40 मीटर, सेकेंड 40 में पूरा 40 मीटर, थर्ड 40 में पूरा 40 मीटर, लास्ट 20 सेकेंड है तो कितना चलता है 20 मीटर। दैट मींस ए से कहां तक पहुंचता वो, सी तक। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका बनाना पड़ता है डायगोनल। क्या बनाना पड़ता, डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है, वो आपने पढ़ी नहीं है अभी। ठीक है। तो क्वेश्चन टोटल नहीं है, 10 मीटर 40 सेकेंड वाला है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, हम आज यहीं तक बात कर पाएंगे। सो जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैन नॉट बी जीरो, इट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, यस इट कुड बी जीरो, कुड बी जीरो। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेकंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल और स्मॉलर हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स है। क्लियर। सो अब मैं आपको ग्रुप में कुछ वर्क भेज दूंगा, उसमें से आपको काम करना है। ओके। सो हम इस न्यूमेरिकल सेक्शन में और अभी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमको बहुत वर्क करना है न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये हमको आगे लाइफ में काम आता है, 11th में भी काम आएगा। तो मैं आपको 11th का जो वीडियो शेयर करूंगा, उसमें से आप सिर्फ ग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कहाँ तक आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर 8th चैप्टर में हाफ पोर्शन हो चुका है। हाफ पोर्शन के लिए एक कंसोलिडेटेड वीडियो और आएगा, तो उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। सो ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।